اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دریائے نیل بہتا رہا کی آج تیسری ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے قسط نمبر 3۔ عمر بن عاص مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق و شوق بھی تھا۔ وہ جہاں چاہتے بڑے آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پس و پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا صلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ویسے شماس کی پیشکش عمر بن عاص کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے اس کی بہت شہرت سنی تھی اور کئی بار انہیں اسکندریہ جانے کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے، ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص کی پیشکش قبول کر لے اور اس کے ساتھ چلے جائے۔ عمر بن عاص نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہ آگے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا وقت اور دن مقرر کر لیا تھا۔ اس دور میں نہر سوئز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی کے راستے بھی مصر جا سکتے تھے اور اسکندریہ تک جانے کے لیے بحری راستہ بھی تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ وہ لوگ کس راستے گئے، خشکی یا سمندر کے راستے۔ تاریخ نے اتنا ہی بتایا کہ عمر بن عاص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کے ہمراہی میں اسکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے اسکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر ہے۔ عمر بن عاص نے جب اسکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اور اتنی دولت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ وہ یوں ہے کہ انہی دنوں اسکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں کہ ملتا کہ یہ کیسا جشن تھا، لیکن یہاں یہ لکھا ضرور ہے کہ شہر کے لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ اس میں شاہی خاندان بھی اور وزراء، امیر، حاکم بھی اس میں شامل تھے۔ شہر سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمر بن عاص کو ابھی اس جشن میں لے گیا۔ شماس نے عمر بن عاص کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کے انہیں پہنایا تھا۔ عمر بن عاص نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی اور وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمر بن عاص کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے، اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے کہ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کے ایک بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر مر نہیں سکتا، اور اگر کسی آدمی پر گرے تو اس کے بازو پر اور اس کے بازو پر نہ گرے، سر پر یا کندھے پر یا پیٹ پر گرے۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور مرتبے والا آدمی تھا، اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمر بن عاص کو بھی آگے لے آیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی تو گیند عمر بن عاص کے دائیں بازو پر آ پڑی اور عمر نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازو پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشاؤں میں کئی لوگ کہکا لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں اٹھیں، نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا سا بدو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر بن عاص عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں اور منہ میں بھی کچھ زیادہ اچھی چوڑائی تھی۔ داڑھی لمبی رکھتے تھے، سینہ تو خاص طور پر چوڑا تھا۔ یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی تھی، لیکن ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں اور چہرے پر بشاشت
और जिंदा दिली का तासुर रहता था। गुस्से वाली बात पर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया करता था। उनका ये जिस्म देखकर सिकंदरिया वालों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि ये शख्स उनका बादशाह नहीं हो सकता। अल्लाह के भेद को तो कोई नहीं पा सकता, कोई भी नहीं समझ सका। खुद उमर बिन आस भी ये ना समझ सके कि अल्लाह तबारक व तआला का एक इशारा है जो कुछ ही अरसे बाद अमली शक्ल में सामने आ जाएगा। और आज जो लोग और शाही खानदान के जो अफराद इस अरबी बद्दू का मजाक उड़ा रहे हैं, ये इनकलाब भी देखेंगे कि यही अरबी मिस्र के बादशाह का तख्त उलट देगा और फातिह मिस्र कहलाएगा और इन्हीं लोगों पर इसका हुक्म चलेगा। गेंद की रस्म अदा हो चुकी थी और गेंद ने उनके अकीदे के मुताबिक फैसला दे दिया, लेकिन तमाशाईन का हुजूम इस फैसले को मंजूर नहीं कर रहा था। इस रस्म का ये मतलब नहीं था कि जिस पर गेंद गिरी वही वक्त का बादशाह बने, बल्कि इसका मतलब ये था कि वो आने वाले वक्त में बादशाह बन सकता है। लेकिन हुजूम ने हंगामा बर्पा कर रखा था। शमास ने उमर बिन आस का बाजू पकड़ा, उन्हें वहीं से उठाकर अपने साथ ले आया और घर ले गया। 2-3 दिन और सिकंदरिया की सैर करवाई, फिर बवक्त रुखसत 2000 दिनार पेश किए जो उमर बिन आस ने कुछ पसोपेश के बाद ले लिए। शमास ने उमर बिन आस और उनके साथी के साथ अपना एक आदमी रवाना किया और उससे कहा कि उन्हें बैतुल मुक़द्दस छोड़कर वापस आ जाए। इब्ने अब्दुल हकम लिखता है कि उमर बिन आस मिस्र से तो आ गए, लेकिन मिस्र और सिकंदरिया उनके ज़हन पर ऐसा सवार हुआ कि वो अक्सर कहा करते थे कि वो मिस्र में जाकर आबाद होना चाहते हैं। चूंकि ये बाब इस दास्तान का तारुफी बाब है, इसलिए मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उमर बिन आस की शख्सियत और जंगी फहम और फरासत की एक दो झलकियाँ देख ली जाती। यूं तो बयान हो चुका है कि उमर बिन आस ने इस्लाम किस तरह कबूल किया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर किस तरह एतमाद किया था और उन्हें जंगी उमूर में आला रुतबा दिया था। हम आपको इस दास्तान के इस दौर में थोड़ी सी देर के लिए वहां ले चलते हैं जहां अबू उबैदा, खालिद बिन वलीद, शर्जैल बिन हसना और अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने शाम से रूमियों के पांव उखाड़ दिए थे और रूमी पसपाई की कैफियत में दाखिल हो चुके थे। हम किसी मार्के को तफसील से बयान नहीं करेंगे वरना असल दास्तान तो अलग रह जाएगी। रूमियों का मशहूर जनरल तो हरकल था, लेकिन उनका एक इंतहाई चालाक, अय्यार और मक्कार जनरल अतरबून था। इसकी अस्करी फहम विरासत और मैदान जंग में नजरों की गहराई का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो हरकल का हम पल्ला और हम रुतबा था, लेकिन इसके मुकाबले में तिफल मकतब लगता था। तारीख हैरत का इजहार करती है कि मुसलमान सिपह सलारों ने अरतबून को किस तरह शिकस्त दी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके थे। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और अब खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर बिन आस के जौहर देख चुके थे और उनकी खूबियों से भी अच्छी तरह आगाह थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि खालिद बिन वलीद खतरा मोल लिया करते हैं और शुजात में दूसरों को हैरान कर देते हैं, लेकिन उमर बिन आस सोच समझ कर कदम उठाते हैं और आग में भी कूद जाते हैं। जंगी मस्बरू ने लिखा है कि उमर बिन आस दुश्मन को धोखा देने की पॉलिसी पर अमल करते थे और उनमें शुजात कूट कूट कर भरी हुई थी। दो बद्दू मार्कों में दुश्मन तो उनके सामने कभी ठहर ही नहीं सकते थे और उन्होंने ऐसी मिसालें पेश की कि देखने वाले देख कर रह गए। रूमी फौज शाम से पसपाई हुई और फ़लस्तीन में मुख्तलिफ मकामात पर फैल गई। ये रूमियों की एक चाल थी जो उन्होंने मुसलमानों की कलील तादाद देख कर चली थी। उनका मकसद ये था कि मुसलमानों का लश्कर किसी एक मकाम पर हमला करेगा तो ये तमाम बिखरी हुई फौज इस तरह इकट्ठा कर ली जाएगी कि मुसलमान के इस थोड़े से लश्कर को हर तरफ से घेर लिया जाए। उमर बिन आस के जिम्मे बैतुल मुक़द्दस की फतह लगा दी गई। उनके मुकाबले रूमियों का इंतहाई चालाक जनरल था और वो उस वक्त अपनी फौज अनाजदीन के मकाम पर ले जा रहा था। उमर बिन आस ने अपने लश्कर की नफरी और जिस्मानी कैफियत देखी तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ पैगाम भेजा कि कमक भेज दे क्योंकि मुकाबला अतरबून से है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम मिलते ही अच्छी खासी कमक भेज दी और तारीख में आया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने फरमाया, हमने अरब के अतरबून को रूम के अतरबून से टकरा दिया है, अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा सामने आता है। हज़रत उमर अच्छी तरह जानते थे कि अतरबून जंगी कैफियत में लोमड़ी जैसी चालाकी और अयारी को ऐसी खूबी से इस्तेमाल करता है कि दुश्मन अपने दुश्मन को चकरा देकर भगा देता है। अमीरुल मोमिनीन की भेजी हुई कमक फ़लस्तीन उमर बिन आस के पास पहुंच गई। उमर बिन आस ने यूं ना किया कि सारी कमक अपने पास रख लेते। उन्होंने देख लिया था कि अपना लश्कर 3-4 हिस्सों में बट गया था और किसे कमक की ज़रूरत ज़्यादा थी।
उन्होंने 2 मकामात पर कमक भेज दिया और कुछ अपने साथी रखे, लेकिन जब आगे बढ़े तो देखा कि अतरबून ने अपनी फौज किलाबंदी कर ली है और चारों तरफ गहरी खंदक खोद रखी है। उमर बिन आस ने देख लिया कि मुहासरा किया तो बड़ा ही लंबा हो जाएगा और खंदक की वजह से ये किला सर करना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ही दुश्वार ज़रूर होगा। तरीका एक ही है कि अब इनको धोखे में लाया जाए। उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि 2 एलची अतरबून की तरफ भेजे, जिनके लिए हिदायत ये थी कि वह अतरबून के साथ सुलह के माहदे की बातचीत करे तो वो यकीनन ना मानेगा, लेकिन असल मकसद ये है कि किले के अंदर अच्छी तरह देखें कि यह किला किस तरह सर किया जा सकता है और रूमियों की फौज की नफरी कितनी है, वगैरह वगैरह। उमर बिन आस का मकसद सुलह नहीं था बल्कि जासूसी था। दोनों एलची गए और बातचीत करके वापस आ गए। उमर बिन आस ने जब उनसे अपने जहन के मुताबिक पूछना शुरू किया कि क्या उन्होंने फलां चीज़ देखी थी, ये बात की थी, अतरबून के इस सवाल का क्या जवाब दिया था और तुम लोग देख कर क्या आए हो। उमर बिन आस ने देखा कि ये 2 एलची निकम्मे साबित निकले और वहां उन्होंने अतरबून से मरूब होकर आ गए और उन्होंने जासूसी पूरी तरह की ही नहीं। उमर बिन आस ने अपने मातहत सलारों से कहा कि वो खुद एलची बनकर जाएंगे अव्वल और ये जाहिर होने ही नहीं देंगे कि वो मुसलमानों के इस लश्कर के सिपा सलार हैं और उनका नाम उमर बिन आस है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको ज़रा सा भी शक हो गया तो वो पकड़ कर कत्ल करवा देगा या काल कोठरी में फेंक देगा। उमर बिन आस ने भेस बदला और अपने सालारों से राय ली और उनकी राय के मुताबिक अपने बहरूब में कुछ तब्दीलियां की और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े। किले के दरवाजे पर जाकर उन्होंने बताया कि मुसलमानों के सिपा सलार ने उन्हें एलची के तौर पर भेजा है और अतरबून से बातचीत करनी है। अतरबून को इतला मिली तो उसने उन्हें फौरन बुला लिया। उमर बिन आस अतरबून के सामने जा खड़े हुए और ऐसी अदाकारी की कि जैसे वो सिर्फ एलची है और अपने लश्कर में उनका कोई ऐसा ऊंचा रुतबा ओहदा नहीं है। अतरबून ने उन्हें इतनी ही ताज़ीम दी जितनी एक एलची को दी जाती है। सुलह के मुज़ाकरात शुरू हुए तो उमर बिन आस ने ये तो सुन रखा था कि अतरबून बहुत ही चालाक आदमी है, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था कि वो किस हद तक चालाक है और उसकी नज़रें कितनी गहराई तक पहुंच जाया करती हैं। उमर बिन आस आखिर सिपा सलार थे और अपने कबीले में भी उन्हें बरतरी हासिल थी और ये बरतरी उनका बुनियादी जुज़ था। इंसान शऊरी तौर पर तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लाशऊर पर पर्दा डालना मुमकिन नहीं होता। शायद बातें करते करते उमर बिन आस के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई होंगी या उन्होंने लबो लहजे में या कोई ऐसा तासुर पैदा कर दिया होगा कि अतरबून चूका। मेरी नज़रों ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अतरबून ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि मैं किसी एलची से नहीं बल्कि अरब के सिपा सालार से बात कर रहा हूँ। क्या तुम उमर बिन आस नहीं हो? नहीं, उमर बिन आस ने जवाब दिया। अगर मैं उमर बिन आस होता तो अपने ऊपर झूठा पर्दा डालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे सिपा सलार उमर बिन आस इतने निडर और बेखौफ इंसान है कि उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। तारीख में लिखा है कि अतरबून हंस पड़ा और जैसे वो उमर बिन आस की बात मान गया हो और उन्हें एलची ही समझ रहा हो। जंग के बाद जंगी कैदियों से पता चला था कि अतरबून ने उमर बिन आस को सही पहचाना था और उन्हें धोखा ये दिया था कि उसे गलती लगी थी कि वो वाकई एलची है। उमर बिन आस के इस जवाब से मुतमईन न हुए और सोचने लगे कि यहाँ से किस तरह निकला जाए। उन्हें शक इस तरह से हुआ कि मुज़ाकरात के दौरान अतरबून किसी बहाने से बाहर निकला और जल्दी वापस आ गया और मुज़ाकरात शुरू कर दिए। उसकी इस हरकत से उमर बिन आस को पक्का शक हो गया कि उनकी खैर नहीं है। बाद में जो असल बात खुली थी वो ये थी कि अतरबून ने बाहर जाकर अपने एक मुहाफ़िज़ से ये कहा था कि वो फलां जगह जाकर इंतज़ार करे और ये अरबी जो अंदर बैठा है वापस जा रहा हो तो पीछे से उसकी गर्दन पर ऐसा वार करे कि सर तन से जुदा हो जाए। वो मुहाफ़िज़ उस जगह पर चला गया जो उस काम के लिए मौजू थी। उमर बिन आस ने एक तरीका सोच लिया। उन्होंने मुज़ाकरात का रंग ही बदल डाला और यूँ ज़ाहिर करने लगे जैसे वो रूमियों की ताकत से डरते हैं और उनके शराइत मान लेंगे। इस रवैये का असर उन पर खातर खा असर हुआ। अब मैं आपको असल हैसियत बताता हूँ। उमर बिन आस ने कहा, मैं सिपा सालार उमर बिन आस का भेजा हुआ एलची नहीं हूँ, बल्कि हम अपने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भेजे हुए 10 मशीर हैं और हमें आपके साथ सुलह की बातचीत के लिए भेजा गया है और हमारे लिए हुक्म यह है कि काबिल कबूल शराइत मान लें। हम मदीने से सीधे आपके पास पहुँचे हैं। उमर बिन आस का उन मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आपकी बात सुन ली है। मेरे बाकी 9 साथी मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन सब को यहाँ ले आऊँगा और अगर आप चाहें तो मैं
उन्हें जाकर ये बात बता दूंगा कि यहाँ पर क्या बात हुई है। फैसला करके आपको बता देंगे। मुझे यही तवक्को है कि मेरे साथी आपकी शरात मान लेंगे। ये तो और ज़्यादा अच्छा है, अतरबून ने कहा। बेहतर है कि तुम उन्हें यहीं ले आओ। अतरबून फिर किसी काम के बहाने बाहर निकला और एक मुहाफिज को ये हुक्म दिया कि फ़लाँ मुहाफिज फ़लाँ जगह पर खड़ा होगा, उसे कह दो कि तुम्हें जो पहले काम बताया था वो अब नहीं करना और वापस जाओ। उमर बिन आस वहाँ से उठे, खैर खूबी किले से निकले, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अतरबून शाम तक इंतजार करता रहा। ये अरबी सिपा सलार मुझे धोखा देकर जिंदा निकल गया है। अतरबून ने कहा, मैंने इससे बढ़कर अयार आदमी कभी नहीं देखा। इसके बाद मैदान में बड़ी खूनरेज लड़ाई हुई जिसमें दोनों तरफ का बेपनाह जानी नुकसान हुआ और अतरबून अपनी बची खिंची फौज को साथ लेकर बैतुल मुक़द्दस चला गया और वहाँ फौज को किला बंद कर लिया। उमर बिन आस और एक दो और सिपा सलारों ने बैतुल मुक़द्दस को मुहासरे में ले लिया। एक रोज़ उमर बिन आस को इतला दी गई कि अतरबून का कोई एलची पैगाम लाया है। उन्होंने एलची को फ़ौरन बुलाया और पैगाम देकर पढ़ा। अतरबून ने लिखा था, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारी कौम ने तुम्हें वही रुतबा दिया है जो मेरी कौम ने मुझे दे रखा है। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। तुमने अगर अजनादीन हमसे ले लिया तो इस खुशफहमी में मुब्तला न रहना कि तुम फ़लस्तीन का कोई और हिस्सा फतह कर लोगे। तुम फ़लस्तीन में अब कोई और कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि यहीं से वापस चले जाओ और अपने आप को तबाही से बचा लो। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा अंजाम नहीं उन्हीं जैसा होगा जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करने आए थे और फिर जिंदा वापस न जा सके। उमर बिन आस ने अतरबून के एलची के हाथ उसके पैगाम का जवाब भेज दिया। उन्होंने जवाब में लिखा, मैं फ़लस्तीन का फातिह हूँ। मैं तुम्हें दोस्ताना मशवरा देता हूँ कि अपने मुशीरों के साथ तबादला ख्याल कर लो। हो सकता है कि वो तुम्हें तबाही से बचाने के लिए कोई दानिशमंदा मशवरा दे सकें। अजनादीन और बैतुल मुक़द्दस की फतह एक अलग दास्तान है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने ये आती है जो तारीख के दामन में महफूज है। मौरख़ तिबरी ने लिखा है कि अतरबून ने उमर बिन आस का पैगाम पढ़ा। उनके अल्फाज पढ़कर वो हंस पड़ा कि मैं फ़लस्तीन का फातिह हूँ। अभी बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं हुआ था कि अतरबून ने उमर बिन आस का ये पैगाम अपने मसाइबों और मुशीरों को पढ़कर सुनाया और कहा कि उमर बिन आस बैतुल मुक़द्दस का फातिह नहीं हो सकता। उसने ऐसे लहजे में ये बात की कि सुनने वालों को ये ख्याल आया कि बैतुल मुक़द्दस ज़रूर फतह होगा, लेकिन फातिह उमर बिन आस नहीं होंगे। उनमें से किसी ने उससे पूछा कि उसने ऐसी बात क्यों कही है। बैतुल मुक़द्दस के फातिह का नाम उमर है। अतरबून ने अजीब बात की। तौरात में लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस की फतह के नाम में सिर्फ 3 हरूफ होंगे। ये 3 हरूफ उमर हो सकते हैं। फिर तौरात में उमर के औसाफ बयान किए गए हैं जिनमें किसी को शक को शुबा की गुंजाइश नहीं। तौरात में साफ लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में चला जाएगा। तिबरी लिखता है कि अतरबून ने यह बात हत्म यकीन के लहजे में कही और उसकी इस मजलिस पर सन्नाटा तारी हो गया। बाद मौरख़ीन ने यह भी लिखा है कि अतरबून बगैर लड़े बैतुल मुक़द्दस से अपनी फ़ौज निकाल कर मिस्र को भाग गया। आज की कहानी यहीं तक है। अगली कहानी में हम इंशाअल्लाह और दरिया नील बहता रहा की एपिसोड नंबर 4 को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उमर बिन आस ने आगे क्या काम सर अंजाम दिए। आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अपना दोस्तों का रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।